You have already done this part. That when you keep an object very much close to the lens or within the focus, जब आप focus के अंदर object को रखते हो, you experience a magnified and a virtual image. Like this virtual image does not exist, but if a person sees from the observation, field observation, if that person is in the observation of a field, is in the field of observation, then that person will find that this particular light ray is coming from this particular direction. Are you understanding what I'm trying to say? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर कोई यहाँ से देखे तो उसको ऐसा फील होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कहीं ऊपर की तरफ से आ रही है और आपको इमेज मैग्निफाइड होकर मिलेगा. ऐसे ही इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं. ये बात मैं काफी बार आपको समझा चुकी हूँ. ये समझा है सबको यहाँ तक? Yes. Okay. Now, let's prove some concepts regarding your microscope. What are those concepts? Let's prove it in detail. Now, I have already given you what do you mean by magnifying power? What do you mean by magnifying power? Anyone? Angle made by final image on ice is to angle made by object on ice or naked ice. Yes, but you have to specify Yes. that angle made by image is when the lens has been kept. That beta is the angle, is the visual angle which is made after keeping the lens. If you remember. Yes. So, we have already done that. Your beta, your magnifying power is given by beta by alpha, where beta is the visual angle which is made after keeping the lens with the eye, and alpha is the visual angle when an object is kept at a distinct vision. Hope you people remember this part. Yes. Next is this beta can be written as 10 of beta and 10 of alpha. From the diagram above, give me what is 10 of beta and 10 of alpha. What will be 10 of beta and 10 of alpha? H by U. Give me 10 of beta. What will be 10 of beta? H by U. upon U. AB upon U. AB upon U. This AB is को your H लिया. U. Yes. This is your, let's say this is your V. B. Okay. And distinction का जो distance है, जब अल्फा बनता है तो V से I am saying that कि जब अल्फा बनता है तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्विशन पे रखा जाता है. और ह्यूमन आई के लिए डिस्टिंक्विशन कितना सेंटीमीटर्स होता है? 25 सेंटीमीटर. 25 centimeter. तो उस डिस्टिंक्विशन को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करती हूँ. Okay. So here 10 of beta will be given by, if I look at the diagram, just look at your diagrams. 10 of beta will be given by, bolo, what will be the 10 of beta? AB by AB U. upon U. AB upon U. Take it as AB upon U. AB upon U. U. And if I talk about 10 of alpha, look AB at upon the D. AB upon D. AB upon D. ये AB upon D आपने दो डायग्राम्स बनाए हैं, याद है? एक मैंने पहला डायग्राम अल्फा के लिए बनवाया था, Yes. दूसरा बीटा के लिए बनवाया था. So this is AB upon D and this is AB upon U. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No. No. Late admissions and batch 3 people. This got cancelled. You got M is equals to D by U. D by U. D by U. Is everyone clear till this concept? Should I move ahead? Yes. Yes. Now let's try to find out how much maximum magnifying power or how much maximum magnifying power you can have. That is max magnifying power. अब आपने देखा होगा नॉर्मली जब आप लेंस को
काफी पास ले जाते हो तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है वाइल मैग्नीफाइंग। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई हो सकता है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट अ जनरल फॉर्मूला फॉर दैट। नाउ we know that the lens formula for the thin lenses are given by 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u। ठीक है, नाउ हमको पता है हमारा v तो v मिनिमम है, हमको एटलीस्ट d पे तो रखना ही है, दैट इज डिस्टिंग्विशन, एंड आई विल टेक डिस्टिंग्विशन एज नेगेटिव बिकॉज मैं लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट को रखती हूँ। इमेज सॉरी योर इमेज शुड बी एट योर डिस्टिंग्विशन। आपका इमेज जब डिस्टिंग्विशन पे होगा तो वो सबसे ज्यादा एंगल से आपको वो चीज दिखेगी। दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस कि डिस्टिंग्विशन पे होने पर आपका जो इमेज होता है वो सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड होकर मिलता है। ओके, सो V minimum will be approximately equals to D. Focal, since I am using a convex lens, it will be plus F, and I'll take it as minus U. Now let's put it in the lens formula. मेरा इमेज जो है अगर D पे बनता है तो मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्निफाइड इमेज मिलता है। Now let's substitute this in the above equation. I get 1 by F is equals to 1 by D plus 1 by minus U. So 1 by F is equals to minus Minus D. Yes, Minus D. आएगा। D. 1 by minus D minus 1 by U. Is it okay? Yes. Yes. Next is what? Now what I'm going to do? मैम प्लस यू हो जाएगा ना, प्लस Plus आएगा U मिस प्लस यू होगा, लेंस के प्लस लिए 1 अपन यू। माइनस मिस 1 बाई लेंस आएगा, के लिए 1 रुको, by v रुको। प्लस रुको बच्चा रुको, I understood. माइनस आएगा ये। I took the mirror formula by mistake. That's fine, that's fine. Okay, so this is minus, minus, minus got plus. समझा सबको? Great admissions Yes. and batch 2 people. 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. This is lens formula. मैंने mirror formula लिख दिया था गलती से। 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. V minimum is equals to minus d, मतलब आपका इमेज एटलीस्ट डिस्टिंग्विशन पे बनना चाहिए। जब आपका इमेज डिस्टिंग्विशन पे बनता है तो आपका इमेज सबसे ज्यादा मैग्निफाइड होता है। f इज इक्वल्स टू प्लस एफ ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रही हूँ, और u माइनस u होगा। यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर है? Yes. yes Yes. When I substituted d I am taking to be negative, u I am taking to be negative, this minus minus becomes plus. The equation becomes 1 by f is equals to 1 by minus d plus 1 by u. Are you clear till here? Yes. yes Yes. Okay. Now what I am doing? What I'm going to do, multiply by d in all the equations. So it becomes d by f is equals to minus d by d plus d by u. Okay. Now let's d by u is the magnifying power. इसको यहाँ लेके जाते. This d by d Yes. becomes d by d becomes Minus minus 1 plus d minus by one. u. Minus 1. Therefore, d by u is equals to 1 1 plus d by f. Yes. And d by u आपको पता है क्या होता है? What is d by u? d by u is Magnifying maximum power. power. magnifying Magnifying power. Magnifying power. Magnifying max. m max. That will be equals to 1 plus d by f. ये m max क्यों है? क्योंकि हमारा इमेज जो है वो कहाँ पर बन रहा है? Where it is formed? Our image is at Distance of distinction. yes, it is distance of distinction. जब आपका इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पर बनता है, आपका इमेज सबसे ज्यादा मैग्निफाइड होता है. दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड. सो द मैक्सिमम मैग्निफाइंग पावर इज गिवन बाय 1 plus d by f. Do you have any doubt till here? Just look at the proof, and if you have any doubt, please ask. Here I am multiplying by d in whole equation. Is it clear till here? yes आगे बढ़े. Yes. yes Now, if I want to calculate the minimum magnifying power,
if I want to calculate the minimum, that is m minimum, कि कितना minimum magnify कितना होगा. एक कोई भी चीज का एक maximum होता है कि maximum वो कितना जा सकता है और minimum वो कितना जा सकता है. So if I want to calculate a minimum, हमने देखा कि जब हमारा इमेज डिस्टिंक्विशन पे बनता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन पे बनता है, इट इज मैक्सिमम, उसका मैग्निफिकेशन सबसे मैक्सिमम होता है. वैसे ही जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, ओके, सो इट इज एक्सपीरियंस्ड दैट व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एज द फोकस, योर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इट इज अ मिनिमम मैग्निफाइड इमेज. जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपका जो इमेज होता है वो इंफिनिटी पे बनता है और वो सबसे मिनिमम मैग्निफाइड इमेज होता है. सो योर वी विल बी एट इंफिनिटी एंड योर ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस. हमने फॉर्मूला अभी पीछे देखा था. व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज 1/f. लाइट इंटेंसिटी कम पड़ रही. एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर व्हाइल. Can you people see it clearly now? Yes. Yes. Okay. So what I said for the minimum magnification, what are the conditions? That when you keep your object at the focus, your image will be at infinity and it will be, what it will be? What will be the size? It will be Minimum magnification. Minimum. yes, it will be minimum magnified. So let's substitute and F. what you will get. Let's try to have it. 1/f is equals to 1 by 1 b by b minus 1 by minus u. 1 by u. So 1/f, 1 by infinity 0. minus 1 by Zero. u is 1 by infinity will be 0. 0. Zero. Zero. मैम आपने मेरा वीडियो क्यों डिसेबल कर दिया? होस्ट ओके. सो 1 by infinity is 0. जब आप किसी बहुत बड़े नंबर से कभी डिवाइड करते हो तो यू गेट द आंसर एज 0. ओके. सो if you go for this is 1 Minus by u. u was Minus u. minus u. Minus u. Correct. And minus Yes. u की जगह पे हम क्या डालने वाले हैं? What we are going to put? F. 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 F डालने वाले हैं. So this minus and minus becomes plus. Okay. So if this minus and minus becomes plus, so you'll simply get 1 by f is equals to 1 by u. Is it F okay? equals to u. Multiplying Multiply by by d. d on both the sides. So you get D by f is equals magnifying to d power. by D by u. F equals to by u. और d by u आपको पता है क्या होता है? Magnifying Magnifying power. power. Magnifying I power. mean, So maximum m minimum magnifying is power. equals to no. It is minimum one. Minimum. Because अभी हम ऑब्जेक्ट को Yes. कहाँ पर रख रहे हैं? Minimum. ऑब्जेक्ट इज Focus. केप्ट एट द फोकस. Focus. Focus. तो इमेज कहाँ Focus, बनेगा? yes. इंफिनिटी पे. और Infinity. कोई चीज Infinity पे. जब कोई चीज इंफिनिटी पे होती है तो उसका साइज मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? Minimum. 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 मिनिमम इज इक्वल्स टू डी बाई एफ. मतलब आपका मिनिमम आपका डी बाई एफ मैग्निफाइड होगा और मैक्सिमम आपका 1 प्लस डी बाई एफ मैग्निफाइड होगा. समझ में आ रहा है कुछ? Yes. समझा Yes. सबको कुछ? Yes. Yes. कोई इस कंसेप्ट में डाउट है तो पूछो. बैच 3, बैच 2, लेट एडमिशंस एंड बैच 1. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. D by f is the minimum magnifying. 1 plus D by f is the maximum part. D by f is the minimum. इतना टाइम मिनिमम इतना तो होना ही है और मैक्सिमम इतना होगा. ये आपका रेंज है उस पर्टिकुलर सिंपल माइक्रोस्कोप का.
कि मिनिमम वो इतना मैग्नीफाई कर सकता है और मैक्सिमम वो इतना मैग्नीफाई कर सकता है। एक क्वेश्चन करें इसके बेसिस पे? नहीं, पहले लिख के ले लो, स्टार्ट राइटिंग। ये डायग्राम तो ड्रॉ किया है आप लोगों ने, ये सारा पार्ट लिख के लो जो जो मैंने सामने लिखा है। स्टार्ट राइटिंग दिस, लिख के लो एज इट इज। जितना पार्ट स्क्रीन में दिख रहा है अगर उतना हो जाए तो बोलना, मैं नीचे लेके जाऊंगी फिर। After this, we'll go ahead with one sum and then we will go ahead with compound microscope. Batch 3 आपको समझ में आ रहा है? Batch 3 Yes. people. आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हो सर जो भी पढ़ा रहे हैं आपके एंट्रेंस में? Yes. एंट्रेंस आपका थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाएगा जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। सब लोग लिख रहे हैं ना? Yes. Yes. क्योंकि इसके बाद जो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिखाने वाली हूँ वो आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग दिया है और मैं थोड़ा अलग दूंगी। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक वाला मोस्टली मत प्रीफर करो, थोड़ा सा डायग्रामेटिक मिस्टेक है उसमें। सेमीकंडक्टर्स किसी भी बैच का नहीं हुआ है ना? No. No. ओके, No. चेंज करो पेज। शुड आई चेंज द पेज? Yes. Yes. आगे बढ़े? हो गया सबका लिख के? Yes. मिस 1 मिनट पीछे करो ना। मिस ऊपर का। Yes. Yes, miss. Thank you. Is everyone done? Should I go ahead with the first? What we will do? First, we will complete compound microscope and then we will go for sum. पहले compound microscope complete करते हैं, then sums के साथ जाएंगे. Should I move ahead with the compound microscope? Yes. 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 अच्छा, ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? No. सबको क्लियर है? ठीक है। सी सिंपल माइक्रोस्कोप होने के बाद भी हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करने के लिए? अभी हमने देखा कि हमारा मैग्नीफाइंग पावर जो था D/F होता है, वो कहीं सही है ना? अब ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, कहीं ना कहीं अगर आप D/F के टर्म में देखो या 1 + D/F, हर बार आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फोकल लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मानते हो? Yes. 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 तो अगर मुझे समझो, अगर बहुत ज्यादा छोटी चीज है जैसे कि
ब्लड सेल्स वगैरह हो गए, उनको मुझे मैग्नीफाई करना है, मतलब मुझे उनको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा देखने के लिए। और अगर मुझे बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो मेरा फोकल लेंथ कम होना चाहिए, और अगर मेरा फोकल लेंथ कम करना है मुझे, तो मुझे मेरे लेंस को थिक बनाना पड़ेगा, मोटा बनाना पड़ेगा। और अगर मैं थिकनेस बढ़ा रही हूँ मेरे फोकल लेंथ मेरे लेंस की, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगा। कौन सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा? थिक लेंसेस में प्रॉब्लम कौन सी देखी है हमने? Chromatic बोलो। aberration. Chromatic यस, aberration. क्रोमैटिक एबरेशंस आ जाएगा। Colors और का अगर focus क्रोमैटिक अलग होएगा. एबरेशन, यस, क्रोमैटिक एबरेशन आ गया, फिर वहां पर प्रॉब्लम ये होगी कि आपका मैग्निफिकेशन प्रॉपर्ली होगा, मैग्नीफाई तो होगी चीज, बट वहां पर एबरेशंस आ जाएंगे कलर्स के, और आपको वो इमेज क्लियरली दिखाई नहीं देगी। मतलब अगर मुझे अच्छा मैग्निफिकेशन चाहिए, मुझे हाई मैग्नीफाइंग चाहिए, कि मेरा वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके तभी देख पा रही हूँ, और मुझे अगर उसका मैग्निफिकेशन पावर बढ़ाना है, मैंने देखा है मैग्निफिकेशन पावर फोकल लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए मेरे लेंस को मुझे थिक करना पड़ेगा। और थिक लेंस में जैसे ही मैं लेंस थिक करती हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। दैट प्रॉब्लम इज, हमने पढ़ा था, दैट प्रॉब्लम इज अ क्रोमैटिक एबरेशन। चीजें मैग्नीफाई तो हो जाएगी बट क्लियर नहीं होगी। ये चलेगा क्या? हमको रेड ब्लड सेल्स देखना है, हमको पता ही नहीं चल रहा है उसमें, कि क्लियरली पता ही नहीं चल रहा है रेड ब्लड सेल्स है कहाँ पर, तो चलेगा क्या? मैग्नीफाई होकर फिर No. भी वो यूजलेस हो जाएगा। No. सो Yes. दैट इज द रीजन कि हम लोग बहुत थिक लेंस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा। एंड फॉर अवॉइडिंग दैट प्रॉब्लम, व्हाट वी डू, वी यूज टू लेंसेज। देन हम दो लेंसेज को यूज करते हैं, और जब हम दो लेंसेज को यूज करते हैं, देन वी कम टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसेज से बनाया जाता है। वन इज द आईपीस जिससे आप देखते हो, और वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है। सो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू हैव टू लेंसेज। वन लेंस इज योर ऑब्जेक्टिव जिसको आप ऑब्जेक्ट के सामने रखते हो, एंड वन लेंस इज योर आईपीस जिसके थ्रू आप देखते हो। सो दिस इज द, you use the two combinations, you use the two combination of a lens, or two lens combination, sorry, you use two lens combination so that you can magnify the object without going for the thickness of the lens. कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. क्यों हमको नीड हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, समझा? फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यों नीड आया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हमने देखा मेरा मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मेरी चीज बहुत ज्यादा छोटी है और उसको मुझे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना है, तो मुझे मेरे लेंस का फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा, तो ही मेरा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम होता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, बट इसको कम करने के लिए मुझे मेरे लेंस की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। जब मैं अपने लेंस की थिकनेस बढ़ा रही हूँ, तो मेरे सामने, चलो मैग्नीफाइंग पावर वाला कंसेप्ट तो सॉल्व हो गया, बट थिकनेस बढ़ाने की वजह से एक नया प्रॉब्लम आ गया, दैट इज क्रोमैटिक एबरेशन। अब क्रोमैटिक एबरेशन आने से प्रॉब्लम ये होगी कि चीज मैग्नीफाई तो हो जाएगी बट क्लियर नहीं होगी, इट विल बी नॉट अ क्लियर इमेज। और अगर क्लियर इमेज नहीं होगी तो मैग्नीफाई करके कोई मीनिंग नहीं है। इस वजह से हम लोगों को कुछ ऐसा तरीका यूज करना पड़ेगा जिसमें लेंस मेरा थिक भी ना हो और इमेज भी क्लियर आ जाए मैग्नीफाई होके। फॉर दैट वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेस। वन लेंस एक्ट एज अ ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमको मैग्नीफाई करना है, और वन लेंस एक्ट एज अ आईपीस जिसके अंदर से हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा नीचे की तरफ होता है, आईपीस ऊपर की तरफ होता है। आप ऊपर से देखते हो और ऑब्जेक्ट को नीचे रखा होता है। देखा है आपने कभी माइक्रोस्कोप Yes. पिक्चर्स वगैरह में? Yes. मीन्स अगर थिक लेंस होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। यस, थिक लेंस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगा। दैट्स ट्रू। क्योंकि आपको पता है थिकनेस आप बढ़ाते जाओगे, थिकनेस बढ़ा रहे हो मतलब उसका मटेरियल को आप थिक करते जा रहे हो, और मटेरियल थिक करते जा रहे हो तो फोकल लेंथ कम होता जाता है। दिस हैपेंस। वो मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन करेगा। याद है वॉयलेट का सबसे ज्यादा डाइफ्रैक्शन हो रहा था तो उसका फोकल लेंथ कम था और रेड का फोकल कम लेंथ था, ज्यादा। yes. ज़्यादा था. सो इट गोज लाइक दैट कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो आपका फोकल लेंथ उसी हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये काम कैसे करेगा। नीड समझा सबको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों लाना पड़ा? आर यू Yes. पीपल क्लियर? Yes. What is the need Yes. of a compound microscope? Okay, now how it works पहले वो समझते हैं, फिर रे डायग्राम पे जाएंगे। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसके सामने आप ऑब्जेक्ट को रखने वाले हो,
दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस को हम क्या करते हैं, इसका ना ये जो फोकल लेंथ होता है ना, इसको हम कम रखते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका फोकल लेंथ कम होता है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि ये दूर, ये पास में, इसके ऑब्जेक्ट इसके पास में होता है तो इसका फोकस इसको पास में ही करना है। इससे ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर होता है तो इसका फोकस इसको दूर तक करना है। तो इसका फोकल लेंथ कम होता है और इसका फोकल लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है, उस ऑब्जेक्ट का ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये एक इमेज बनाता है, इट फॉर्म्स द इमेज व्हिच इज एन, ऑफ कोर्स इट इज, आई कैन से इट इज एन इन्वर्टेड इमेज। अब ये जो इन्वर्टेड इमेज है ना, दिस इमेज, इट वर्क्स लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ये इन्वर्टेड इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, हम लोग इसको इस तरीके से इस अरेंजमेंट को करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है ना, दिस इमेज, ये इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है, वो किसी तरीके से फोकल लेंथ के आसपास आकर गिरे। और जैसे ही वो फोकल लेंथ के आसपास आकर गिरता है, आप या सॉरी फोकल लेंथ के अंदर आकर गिरता है इस आईपीस के, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ के अंदर आने वाली जो इमेज होती है, कॉन्वेक्स लेंस में वो इमेज मैग्नीफाइड Virtual image. और वर्चुअल इमेज को रिजल्ट करती है। कुछ याद आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. हाउ इज इट Yes. वर्किंग? Yes. Actually people, केदार, अस्मिता, आप लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। खुशी से, मुझे सबका नाम याद नहीं है, मुझे जिन लोगों का नाम याद है मैं उनके नाम से पूछ रही हूँ। रिया, मनाली, समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू पीपल देयर? Yes, ma'am. Students? Okay, fine. So, especially to the batch 3 and late admissions, please focus on the concepts. Batch 1 people can also, batch 1 people को भी बहुत ज्यादा concentration रखना है, but it is a revision for them. For you people, it is a new part. So, अगर आपको नहीं समझा या आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज बोलो कि मिस नहीं समझा, वापस समझाओ। अगेन आई एम रिपीटिंग द कंसेप्ट, ध्यान से सुनो कैसे काम कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये जो आईपीस है, इसके थ्रू आप देखते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस होता है वो पास में, उसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कम होता है एज कम्पेयर टू ये, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट दूर होता है, इससे ऑब्जेक्ट पास में ही होता है। अब इससे जो इमेज बनेगी, हम अरेंजमेंट इस तरीके से रखेंगे कि ये जो इमेज बन रही है वो इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर बने। मतलब अगर इसका फोकल लेंथ यहाँ पर कहीं है इस लेंस का, तो इमेज जो है वो फोकल लेंथ के अंदर बने। और हमको पता है जी कि अब ये इमेज जो है, ये जो उल्टी इमेज है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये इमेज फोकस के अंदर है, हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता है, we get a virtual magnified and erect image. Are you understanding what I am trying to say? Yes. Yes. यस। So this is how your compound microscopes work. Hope everyone is clear. Yes. Okay. Now I am drawing the ray diagram. Draw it with me. Give the heading as compound microscope. See students, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का मैं आगे बढ़ूं? Yes. ठीक है. Draw the diagram with me. सी आपका डायग्राम है ना, 3 से 4 लाइन का, आप जो भी लेंस बना रहे हो वो सिर्फ 3 से 4 लाइन ही यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा लेंस उससे ज्यादा मत यूज करो, ठीक है? लेट्स ड्रॉ दिस। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका आईपीस को थोड़ा सा बड़ा रखना आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से, क्योंकि कंपाउंड में ऐसा होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ मिस्टेक, तो आप लोग मेरा रे डायग्राम ड्रॉ करके ले लो। यूज अ पेंसिल इन स्केलर। मैं इससे बना रही हूँ तो आप लोग इससे बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है।
put this as A1, B1. इसको यहीं पर मीट करवाओ before this lens only. Try to allow them to meet at this particular point only. मीन्स वो लाइंस ऐसा सीधा हो जाएगा ना, फिर ऐसा कैसे हो गया, बेंड कैसे हो गया? कौन सा राइट Yes. बेंडिंग? मैम ए डैश वो बी डैश में जो लाइन है yes. वो ऐसा सीधा ये आके वाला, ये ये वाला नहीं मैम, रेस आगे का रे. जो आगे This करे है one. ना, ये यस मैम, नहीं, वो नहीं। लाइन बेंड कैसे हो गया? लाइट रे. ये वाला बोल रहे हो? नहीं नहीं, वाला पीछे. ये वाला बोल रहे हो? ये बेंड नहीं हो रहा है, मैंने रे डायग्राम में मिस्टेक किया है. नहीं मैम, Which one? वो दूसरा one? वाला रे. ये वाला बोल रहे हो? नहीं, आपने जो ये बताए थे वो ना, ऐसा उसके आ रहा है। नीचे वाला. This one. यस. ये इसके बाद सीधा रे कैसे हो गया, ऐसा ऊपर कैसे जा रहा है? Straight ले. नीचे जाना ये चाहिए था ऑप्टिकल ना? सेंटर से पास जा हो रहा है ना. दिस इज पासिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकल सेंटर. ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है ना, समझा शुभम? यस मिस, पर ए डैश बी डैश के बाद वो ए बी से रे आया, फिर ऐसा सीधा जाना चाहिए था ना ऐसा? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना, नाउ दिस पार्ट इज वर्किंग लाइक ऑब्जेक्ट टू दिस. ये उल्टा है ना. यस ये मैंने अभी Yes. आपको इसका वर्किंग समझाया. इसका इमेज यहाँ पर बन गया उल्टा, ठीक है. अब जब इसका इमेज उल्टा बन गया तो ये जो पार्ट है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ये थोड़ा सा दूर बनाओगे ना तो आपका ये प्रॉपर बनेगा. ये थोड़ा सा Yes. दूर, मैंने काफी पास ले लिया है, इसको थोड़ा सा दूर बनाओ. ये रे डायग्राम में मैंने इसको काफी पास ले लिया, इसको आप थोड़ा दूर बनाओ. ये वाला पार्ट आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा. इससे ये रे यहाँ जा रही है और दूसरी रे ऐसे पास हो रही है. आप पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करो, आपको यहाँ पर इमेज बनता हुआ मिलेगा विच विल बी अ मैग्निफाइड इमेज, एंड उसको नाम दो B2A2. समझा? यस For a while I'll give you the correct diagram. Just draw that. Draw this one. दिख रहा है सबको? Yes. आई एम कीपिंग द इमेज एज इट इज. यहाँ पर B1 रखा है, यहाँ पर A1 लिखना. Write this as A1. ये B1 A1 है. फटाफट ड्रॉ करके ले लो. आई एम कीपिंग द इमेज एज इट इज. ड्रॉ इट इन द सेम वे. आपके बुक में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, प्लीज ये ड्रॉ करके लो. दिस इज फ्रॉम द एंट्रेंस बुक. सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना? मैं चेक करने वाली हूँ. I'm going to check your image. I'm going to check your diagrams, ray diagrams. So please make it clear कि you are drawing it properly. Because पूरा derivation इस diagram पे based है. और आपका textbook का diagram wrong है. कोई भी एसेस लेके नहीं बैठेगा, इतना क्लियर रखो. मुझे चाहिए, मैंने टाइम दिया है तो मुझे ड्रॉ करके चाहिए. Are you people done? That capital L is representing the length of the compound microscope.
जिस सिलेंड्रिकल में डालकर उसको सेट किया जाता है ना, कि एक साइड में आईपीस होगा और दूसरे साइड में ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, वो पूरा लेंथ जो होता है स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से और एंड होता है आईपीस पे. दिस मच इज द लेंथ ऑफ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. मैम वो A1 और A2 इमेज है ना? यस, पहला इमेज, पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना है दैट इज A1 B1. उसके बाद जो दूसरे वाले आईपीस से जो इमेज बनेगा दैट विल बी A2 B2. ओके मैम. आप ये ड्रॉ करके लो, मैं आपको रे मैम जो डायग्राम फाइनल समझाऊंगी. इमेज बनेगा, मैम हाँ, फाइनल बोलो, इमेज बोलो. बनेगा वो दो लेंस के बीच में बनेगा या लेंस के बाहर भी बन सकता है? दो लेंस के बीच में बनेगा. See, that depends on the position of the A1 B1. That depends on the position of the A1 B1. That is sure. Yes. But I want a magnified image, so I want my A1 B1 to be within the focal length of the eyepiece. समझ रहे हो? अगर मुझे मैग्निफाइड इमेज चाहिए तो मुझे मेरा जो ये वर्चुअल इमेज है A1 B1 जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है, वो किसी ना किसी तरीके से आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए. समझा मैंने क्या कहा? Yes. Are you people done with the part so that I can explain you the diagram? Yes. Yes. बाकी Wait, सब ma'am, लोग- wait. Okay. I'm waiting. Fine. I want you people to be conceptually clear with whatever we are doing over here, because these things are important as entrance point of view. Till now, hope I am clear. Do it fast, guys. Ma'am, Okay, done. completed. Should I explain the diagram? Yes, ma'am. Okay. Just look at this particular part. As I said, this is objective, जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाएगा. ऑब्जेक्ट जिसके सामने रखा जाएगा. This is eyepiece. आपका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द आईपीस. देख सकते हो यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है. इसका फोकल लेंथ इज FE जो काफी बड़ा है और इसका फोकल लेंथ इज F0 जो काफी छोटा है. तो इसका फोकल लेंथ हम काफी छोटा लेंगे. बनाते वक्त जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो ऐसा लेंस यूज करते हैं जिसका फोकल लेंथ छोटा हो. जो फोकल लेंथ छोटा होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह यूज करते हैं और जिसका फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा हो उसको हम आईपीस की तरह यूज करते हैं. नाउ AB इज द ऑब्जेक्ट. ये AB ऑब्जेक्ट है जो U0 डिस्टेंस पे रखा हुआ है आपके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से. नेक्स्ट इज व्हाट, ये AB से रे डाइफ्रेक्ट हुआ सिंस इट इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और ये यहाँ से पास होके ये आपका इमेज बना A1 B1. The image is A1 B1 which is of course it is magnified and it is inverted. मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज बना है. हम अरेंजमेंट इस तरीके से रखेंगे कि हमारा A1 B1 जो है वो इस आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर गिरे. अब ये जो A1 B1 है जो इसका इमेज था वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. When this A1 B1 will work like an object और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है तो हमने ये कंडीशन पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर होता है यू गेट अ मैग्निफाइड एंड इन द इमेज इन द सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी डायरेक्शन में आपको इमेज भी मिलेगा और मैग्निफाइड इमेज होगा एज वेल एज वर्चुअल इमेज होगा. अगर कोई पर्सन यहाँ से खड़ा होकर इस रे को देख रहा है, इस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई पर्सन इस रे को देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा ये रे यहाँ से कहीं से आ रही है, नीचे की तरफ से, इस पॉइंट से आ रही है. दिस इज व्हाट दैट पर्सन विल एक्सपीरियंस. उसको ऐसा लगेगा ये रे नीचे से कहीं से आ रही है. दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम हियर. So जब ऐसा फील होता है कि that ray is coming from here, we say that it is an virtual condition. So as you can see, since this image which is formed by objective lens is working like an object for the eyepiece, इससे बना हुआ जो image होगा, since it is within the focal length of the eyepiece,
that particular part will be, the image will be, that is A to B2, जो final image होगा, that will be magnified, that will be in the same direction of the object, and of course it will be a virtual image. Condition समझा सबको? Is everyone clear? Yes. 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 Late admissions and batch 3 people, are you clear? Yes. 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 आप देखो, आपका फाइनल इमेज जो है A to B2 वो VE डिस्टेंस पे बना हुआ है. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज रिटन एज FE. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिटन एज F0. जो मेन वाला ऑब्जेक्ट है AB वो U0 डिस्टेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस से रखा हुआ है. नेक्स्ट, V0 is that distance of a image which is formed from the objective lens A1 B1, and L is the total length of the compound microscope, जिसमें एक साइड पे ऑब्जेक्टिव और दूसरे साइड पे ऐसा सिलेंड्रिकल मटेरियल होता है. सिलेंडर जैसा कैपिटल L लेंथ का होता है. एक साइड पे हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं, दूसरे साइड पे वो आईपीस रखा जाता है. मतलब स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव से होती है और एंड उसका आईपीस पे होता है जहां से आप देखते हो. So the total length is given by capital L. Hope you are clear what I am trying to say. सबको समझ रहा है? Yes. Yes. Yes, ma'am. और एक Yes. और चीज ऑब्जर्व करो कि लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली योर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीस. ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना आईपीस के लिए, तो आपका कैपिटल L जो है वो V0 प्लस UE होता है. ये चीज भी ऑब्जर्व करो. योर कैपिटल L इज V0 प्लस UE. ये आप सम्स में यूज करने वाले हो. समझा? समझा Yes. सबको? Yes. इस रे डायग्राम को बहुत Yes. अच्छे से ध्यान से देखो. कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो अहेड विद द प्रूफ. अच्छे से देखो, समझ में आ रहा है क्या? AB मेन, AB रियल वाला ऑब्जेक्ट है. A1 B1 AB का इमेज है. A1 B1 ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला आईपीस के लिए, इसीलिए A1 B1 को आईपीस से जो डिस्टेंस दिया है वो UE दिया हुआ है. A2 B2 हमारा फाइनल इमेज बनने वाला है. A1 B1 आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर गिरा हुआ है. इसकी वजह से हमको A2 B2 जो है वो मैग्निफाइड, वर्चुअल और सेम डायरेक्शन जो हमारा A1 B1 का डायरेक्शन है, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसके जैसा ही डायरेक्शन मिल रहा है. यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? A1 B1 ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये सबको क्लियर है आईपीस के लिए? Yes. 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. अब जरा अपने डायग्राम्स देखो और डायग्राम देख के बताओ मुझे, जो फाइनल इमेज बनी है उसके लिए जो बीटा वैल्यू है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बीटा? बीटा का रेशियो बताओ कितना आएगा? व्हाट विल बी बीटा? A2 B2 by VE. A2 B2 by By VE. और एक और तरीके से बीटा निकाल सकते हैं. A1 B1 के टर्म्स में भी बना. upon A1 UE. B1 by UE. A1 B1 by UE. ये सबको मिला? yes. समझा कैसे? डायग्राम में देखो और देखो Yes. समझ में आ रहा है? Batch 3 people and late admissions. A2 B2 by VE and A1 B1 by UE. ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? Batch 3 and late admissions, please answer. मिस बेटा ने समझा कैसे आया? ए बच्चा, डायग्राम देख. दिस इज बीटा. ये बीटा है. Yes. ठीक है. बीटा हम लोग 10 बीटा के टर्म्स में लेंगे. We'll take बीटा in the terms of 10 बीटा. What is 10? 10 होता क्या है? Opposite upon adjacent. अपोजिट अपॉन बेस भी बोल सकते हैं. तुम लोग अपने टर्म्स यूज करो. ठीक है. इन ट्राइंगल A2 B2 एंड दिस, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देख, देखा? दिखा? Yes. ये बेस होगा. बेस अपना कितना है? VE. मानते हो? बेस विल बी Yes. VE.
और आपका अपोजिट क्या होगा? A2B2. A2B2. सो व्हाट विल बी बीटा? A2B2 अपॉन BE. 10 बीटा को अगर Yes. बीटा छोटा है तो 10 बीटा को हम बीटा बोल सकते हैं. सो बीटा विल बी इक्वल्स टू A2B2 अपॉन BE. करेक्ट है? Yes. समझा? If you take a smaller triangle, take this smaller one. So beta will be A1B1 upon UE. करेक्ट है? Yes. और किसी को कोई डाउट है? सबको समझाइए कैसे आया बीटा? Yes. Late admissions, batch 3 people. Are you clear? Yes. Give me alpha value now after looking at the diagram. पहला वाला डायग्राम से दो अल्फा, जो सबसे पहला डायग्राम बनाया था. What was H by D. alpha? AB by D. AB by AB by B D. by D. AB by D. Okay, let's move ahead. और हमको मैग्नीफाइंग पावर का मतलब तो पता है. What is मैग्नीफाइंग पावर? MP is equals to beta by alpha. Alpha. Let's use A1 B1. A So- dash B dash upon UE. A1 B1 upon UE is AB upon D. मानते हो? Yes. Yes. Let's write it way. A1 B1 upon UE into D by AB. ठीक है? Yes. Yes. A1 B1 upon AB is equals to into D by UE. ठीक है? Yes. 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 और A1 B1 upon AB ये जो पार्ट है H2 by A1 H1 है. B1. Magnification Yes. of objective. Yes, it is magnification of objective lens. A1 B1 by AB is actually your M naught. Magnification by the objective lens. Yes. And Yes. D by UE, अभी हमने पीछे देखा था, D by UE is by your Magnifying power. eyepiece. Yes. For eyepiece. क्योंकि UE आ रहा है तो eyepiece से होगा. A1 B1 upon AB will be because of the objective, क्योंकि AB तो ऑब्जेक्टिव के सामने था. जो रियल वाला ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव के सामने था और यूई वाला ऑब्जेक्ट वो आईपीस के सामने था. कुछ समझा ये कैसे आया? ये Yes. पार्ट समझा? Yes. Yes. Batch 3 Yes. and late admissions. Batch 3 and late admissions. Yes. Okay, means I can say this part that maximum magnifying power or magnifying power of a compound microscope is given by M naught into ME. हमें नेगेटिव में आएगा ना M नॉट. जरूरी नहीं है. That we will substitute ना. जब हम लोग ऑब्जेक्ट, अभी मैं फिलहाल मैग्नीट्यूड वाइज जा रही हूँ, जब हम लोग यूज करेंगे ना बच्चा तब हम लोग कंसिडर करेंगे. That then we will consider. तब हमको वो नेगेटिव, जो देखो जो बेसिक कार्टेशियन साइंस हमने पढ़ा है ना वो कहीं पे भी वायलेट नहीं होता. तो हमको ये बात याद रखनी कि अगर हम लेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेफ्ट में बोल रहे हैं तो वी हैव टू टेक नेगेटिव. यू ही हमको नेगेटिव लेना ही लेना है. कुछ समझा मैंने क्या कहा? कुछ Yes. समझा बता सर? Yes. मैम जो इन्वर्टेड इमेज आया उसका नेगेटिव होना. हाँ ले ऑफ कोर्स लेना है बच्चा, लेना ही है. वही मैं मैम बोल रही हूँ. इसमें M नॉट है, माइनस M नॉट हो जाएगा. जरूरी नहीं, मैंने वही बोला शुभम कि what I am saying, try to understand that. What I am saying that कि मैंने मैग्नीट्यूड वाइज बात किया. जब हम लोग सम में सॉल्व करेंगे ना वो सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे. Yes. We are going to consider that. समझा? Yes. Yeah. Okay. Now let's move ahead. Let's try to find out maximum and minimum image. IPs के लिए तो maximum image हमको पता है ना maximum कब मिलता है, जब ME का वैल्यू क्या होता है. जब हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें तो आईपीस ही था जो भी था, 1 plus ऑब्जेक्टिव D by जैसा कुछ अलग से तो था नहीं. सो एमई की जगह पे व्हाट वी कैन पुट 1 plus d by, 1 plus D by F. Yes. और ये हो गया एम मैक्स. एम मिनिमम क्या होगा? D by F आएगा. D by F. M नॉट into D by F. एम नॉट इंटू डी बाई एफ. क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में तो जिससे आप देख रहे थे वही आपका आईपीस था. तो आईपी उस आईपीस के लिए तो हमने फॉर्मूला निकाला था ना, वही आईपीस यहाँ पर भी है. हमने एक्स्ट्रा तो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है. ऑब्जेक्टिव लेंस इज द एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने इंट्रोड्यूस करके उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा नया कुछ एक मटेरियल बनाया.
वरना आईपीस तो पहले वाले में भी था, आईपीस दूसरे वाले में भी था, दूसरे वाले में भी है, तो आईपीस का कंडीशन तो वही चलेगा. सो दिस इज हाउ इट गोस. समझा सबको ये यहाँ तक? सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है? ये एक काम करो, ये फटाफट लिख के ले लो, राइट इट अवे, लिख के ले लो फटाफट. बीटा से लिखना स्टार्ट करो एंड कंप्लीट दिस. Theoretically, your chapter gets over. Actually, sums wise also your chapter gets over, but still we will do some sums. लिख रहे हो आप लोग? Yes. Yes. हाँ. चप्पल किसका है? आपका है? ये डायग्राम तुम लोग यूज कर सकते हो इन द एग्जाम्स. दिस वन इज द करेक्ट वन. जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ये वाला पार्ट आपको नेगेटिव आएगा. कीप इट इन माइंड, क्योंकि ए बी नेगेटिव में है और A1 B1 पॉजिटिव में है. बट ये वाला पार्ट अगर आप देखो, दिस D1, ये भी नेगेटिव में होगा और ये भी नेगेटिव में होगा, तो दिस वन विल बी पॉजिटिव. तो टोटल Yes. आपको नेगेटिव के टर्म्स में आंसर आ सकता है, Yes. जो शुभम बोल रहा था. तो मैंने वही बोला कि जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको वो साइन के बारे में दिमाग में रखना है. यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन योर माइंड कि कार्टेशियन फेल नहीं होता, कार्टेशियन आपको यूज करना है हर जगह. Done, man. Are you people done? Yes. Done, ma'am. Done. Done? Okay. So theoretically, our chapter is over. What you can do? Try the sums. वैसे तो मैंने sums almost करवाए हैं. कुछ sums में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी. कौन से sums थे? किसी को याद है? या फिर एक काम करोगे, कल ट्राई करके आओगे sums और फिर पूछोगे. वैसे मैं सिमिलर टाइप के sums करवा कर ही सेमी